Good morning, everyone. So let's start the new theme number 6. Basically, this theme is about the religious tradition and their changes, and especially the time period of the medieval time period that we can say from the 8th to 18th century. So here in this chapter, actually what we are going to learn is that what is the time period. This is the time period 8th to 18th century, and what were the new devotional changes and religious beliefs and practices changed in this time period. So what we are going to do, we are going to compare it with the ancient time period's religious belief and or with the Vedic time period. We are going to compare it with that, and we are going to find out what kind of changes came here in this and the time period of the Bhakti, the Sufi tradition. Clear? So in this, what we are going to learn, like what we heard about that Guru Nanak ji and the Mirabai and Sufi saints and the Bhakti saints and devotional music, ecstatic musics and all that. What we are going to heard about all that thing, na, that was the time that all things were this was the time period of all the starting of that all Bhakti and Sufi traditions and all that. क्लियर. सो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि 8 to 18 सेंचुरी के अंदर, जिसको हम मिडाइवल टाइम पीरियड बोलते हैं, इस मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर किस तरीके से भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन जो है यहाँ पे फैला. मतलब भक्ति was not the time period started from the 8th. Bhakti was the time period that was the if we talk about the 1000 year before this also, like this Vedic traditions. ठीक है, जो वैदिक है जिसको बोलते हैं, जब भी भक्ति हुआ करती थी, बट देयर आर सम चेंजेस they like when the time change, the following the types of the following things change and the followers change and the way to do the bhakti change. दैट इज़ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू. तो हमें इसमें फोकस कहाँ करना है, हमें फोकस ये करना है कि भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस जो हैं 8 to 18 मिडिएवल टाइम पीरियड के अंदर किस तरीके से उभर के आए, क्या क्या चेंजेस आए, जो न्यू टेक्स्ट जो लिखे गए थे, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द न्यू टेक्स्ट एंड इफ यू टॉक अबाउट द वैदिक ट्रेडिशंस एंड ऑल दैट. Clear? So that is the basic things that we are going to do in this Bhakti and the Sufi tradition. So let's start the video. अभी जो है in this video I am going to only tell you about the basic things and the first point only. ठीक है? For in the first video, first to understand all these things and after that we speed up the whole chapter. Okay, let's start the video. Bhakti and Sufi tradition, चेंज इन द रिलीजियस बिलीव्स एंड द डिवोशनल टेक्स्ट. तो इस टाइम पे क्या क्या मतलब चेंजेस हुए हैं, क्या है एवरीथिंग. द टाइम पीरियड 8 to 18 सेंचुरी एज यूजुअल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मिडाइवल टाइम पे, तो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट 8 to 18 सेंचुरी. सो इन द प्रीवियस बुक और इन द प्रीवियस टाइम और इन द एंशिएंट टाइम पीरियड, दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द 600 BC to 600 CE, हमने क्या क्या देखा. वी सॉ एवरीथिंग लाइक दैट. वी सॉ द रिलीजियस स्ट्रक्चर्स, स्तूपास, टेम्पल्स एंड एवरीथिंग. क्लियर. हमने जो है स्ट्रक्चर्स भी देखे हैं, साथ साथ हमने टेक्सचुअल ट्रेडिशंस भी देखे हैं कि टेक्सचुअल ट्रेडिशन लाइक द वेदास एंड ऑल दैट उस टाइम पे लिखे हुए थे एवरीथिंग. ठीक है. पुरानास जो हैं वो सब चीज़ें जो हैं जो नई फॉर्म में आई, तो यही वो टाइम पीरियड था. यही इन द सेंस द प्रीवियस 600 to 600 CE, मतलब एंशियंट टाइम पीरियड वॉज दैट टाइम पीरियड. एट दैट टाइम डिफरेंट थिंग रिकन्स्ट्रक्ट, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स केम, स्तूपास केम, डिफरेंट टेम्पल्स केम, एज वी ऑल डन इन दैट प्रीवियस बुक ऑल्सो. Clear? And there were so many things that faintly visible in the both text, and there are so many things that we are even don't know because वो faintly visible, मतलब like वो धुंधली हो चुकी थी, they were not there. Clear? So that was thing. So this was the time period of the ancient time period, जहाँ पर हमने टेम्पल से लेके टेक्स्ट से लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने भी नहीं है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस टाइम पीरियड. क्लियर. एंड इन दिस टाइम पीरियड, मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर, इस टाइम के अंदर हम पढ़ेंगे कि 8 to 18 सेंचुरी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, किस तरीके से भक्ति सूफी ट्रेडिशन आया है, न्यू टेक्स्ट जो लिखे गए हैं, कैसे लोगों की सोच बदली है, किस तरीके से ब्राह्मण्स के जो आइडियाज़ थे उन्होंने अपने आइडियाज़ को जो है नए ज़माने के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करने. नया ज़माना, नॉट द मॉडर्न टाइम पीरियड, नया ज़माना दे टॉकिंग अबाउट द मिडाइवल, किस तरह चेंज करने की कोशिश की. क्लियर. सो द पीरियड फ्रॉम 8 to 18 सेंचुरी ऑक्यूपाइज a significant place in the Indian history in regard of development of the religious tradition. यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है.
डेवलपमेंट के बारे, अब जैसे ही डेवलपमेंट का नाम आएगा जस्ट यू लर्न अबाउट दैट, और वी हैव टू लर्न अबाउट द भक्ति एंड द सूफी ट्रेडिशंस एंड गुरु नानक जीज लाइक दैट एंड मीराबाईज एंड द डिवोशनल ट्रेडिशन, ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी। क्लियर, मतलब पूजा प्रणाली या फिर पूजा करने का ये कल्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कल्ट्स, किस तरीके से इंटीग्रेशन हुआ है, किस तरीके से अलग अलग तरीके से लोगों ने पूजा करना स्टार्ट किया है, किस तरीके से लोगों ने भेदभाव मिटाने की कोशिश की, ऑल दीज थिंग्स। So during this time period several changes occur in the religious beliefs and the new traditions, like the bhakti time आ रहा है and Sufi time period इस time period में आया। ओके, तो these includes the, अभी टाइम पीरियड आया तो इसमें क्या हुआ होगा, तो इसके अंदर स्पेशली ये बता रहे हैं म्यूज़िक, जैसे मीराबाई का जो है डिवोशनल म्यूज़िक बहुत फेमस है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सिख कल्चर की, तो उसके अंदर भी डिवोशनल म्यूज़िक उसका बहुत फेमस है। एंड भक्ति की बात करते हैं तो कीर्तन, जागरण, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूज़िक, ये सब फेमस है। सो ये कंपाइल कब हुआ, ये कंपाइल हुआ इस टाइम पे जो है कंपोज, मतलब पोएट सेंट्स जो थे वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज के अंदर आम जनता को जो है गा के या फिर भक्ति की फॉर्म में सुनाया करते। जैसे फॉर एग्जांपल मीराबाई ने थोड़ी उनके जो है डिवोशनल म्यूज़िक जो है कंपाइल किया है। आफ्टर द डेथ ऑफ द मीराबाई दे compiled in their by their devotees only, just like that. So these include the composition of the poet saints, they orally expressed, जस्ट लाइक बुद्धिज़्म कल्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ऑरली एक्सप्रेस किया करते थे वो सब। और आफ्टर दैट जो है, आफ्टर द डेथ ऑफ द गौतम बुद्धा जो है वो कंपाइल किए गए। इसमें भी सेम ऐसे ही है, इन फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड दे कंपाइल डिवोटीज आफ्टर देयर डेथ। क्लियर, सो दीज ट्रेडिशंस, सो ये जो ट्रेडिशन था जो इस टाइम पे स्टार्ट हुआ, ये जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता चला गया। आज भी हम ये सारे जो हैं म्यूज़िक, डिवोशनल म्यूज़िक, ये सब चीज़ें जो पुराने लिंक है लाइक दोहे एंड ऑल दैट, वी आर नोइंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। व्हाई? बिकॉज दे फ्लूड जनरेशन टू जनरेशन। Elaborate their original message. Now this is the main thing. Elaborate their original message and changed or abandoned the idea जो उनको पसंद नहीं आया। So for example, like if you talk about that, what they heard and all these things, जो भी उनको अच्छे नहीं लगे आइडियाज़, उसके अंदर उन्होंने मैसेज चेंज भी किए हैं, मैसेज को जगह जगह फैलाया भी है और अबेंडन भी किए हैं, बदला भी है। जो नहीं अच्छा लगा, जो पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग उनको जो अच्छा नहीं लगा, जो सामाजिक तौर पे उनको अच्छा नहीं लगा, उनको किनको, ये डिफरेंट सेंट्स हैं, जो पोएट सेंट्स हैं, या फिर जनरेशन टू जनरेशन जो चेंज होता गया है। फॉर एग्जाम्पल द वन लाइन इज रिटन इन दैट द प्रीवियस टाइम, देन आफ्टर दैट एडिड to the 2, 3, 4, like the changes, they change accordingly when the time passes, that they also changes. Clear? So understand and use these sources was a challenge. तो अब ये सब चीज़ें, इतना चेंजेस, इतने डिफरेंट एक ही टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से देखना, अलग अलग लोगों का लिखा जाना, अलग अलग सोच को उभारना, तो इन सब चीज़ को समझना, लाइक द वैदिक कल्चर, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट दैट वैदिक एज को समझना, देन आफ्टर दैट एंशियंट के अंदर डिवोशन आया, उसको समझना, आफ्टर टाइम पीरियड ऑफ द मिडाइवल डिवोशन। तो दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर द हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टाइप्स ऑफ द टेक्स्ट एंड स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, एज यूजुअल ऑलवेज दे आर हैविंग. Historians also use the, like, how they understand these things, hagiography and the biographies of the saints. These may not be literate accurate while giving the glimpse into the ways of the lives of the men and the women. May not be literally accurate, ज़रूरी भी नहीं है कि वो प्रॉपरली जो है सही हों, क्योंकि हैगियोग्राफीज लिखी गई हैं सेंट्स के बारे में, तो उनके डिवोटीज़ ने लिखी है, तो उसमें उन्होंने अपनी राय भी डाली होगी, जो उनको अच्छा लगा होगा वो भी डाला होगा, कुछ चेंजेस भी कर दिए होंगे, उनकी बायोग्राफीज अपने हिसाब से, उनकी सोच के हिसाब से लिखी होगी। जरूरी तो नहीं वो सब कुछ सही हो, लेकिन फिर भी हमें उनसे जो उस टाइम पीरियड के मैन एंड वुमेंस के बारे में, उनके रहन सहन, उनका कल्चर, सोसाइटी के बारे में हमें पता चलता था. क्लियर. सो दीज सोर्सेज प्रोवाइड इज इनसाइड सिनेरियो ऑफ द डायनामिज्म एंड द डाइवर्सिटी. तो इन सोर्सेज से, कौन से सोर्सेज? न्यू टेक्सचुअल ट्रेडिशंस. क्लियर. जो सेंट्स के द्वारा लिखे गए म्यूजिक्स थे, उनकी जो पोएम्स थी, इनके द्वारा न्यू टेक्सचुअल ट्रेडिशंस जो हैं उनके द्वारा हमें जो है इनसाइड सिनेरियो, मतलब हमें इस टाइम पीरियड या डाइवर्सिटी या इतने चेंजेस के बारे में हमें पता चला है विद द हेल्प ऑफ द न्यू ट्रेडिशन. Okay, so basically what are the sources? The sources are the new textual tradition. Understand this properly. The sources are the new textual tradition. Second thing, the time period of this all the religious and belief changes and new textual tradition composition was the 8th to 18th century in whole the medieval time period. Clear. This was the thing.
and like a historian try to understand all these things, clear, with the help of all these hagiographies, biographies and everything. So this was the basic source जिससे हमने ये सारी चीज़ें निकाली हैं, जिससे हमने समझने की कोशिश की. Clear. Now let's talk about the first topic of this lesson, that is the mosaic of religious beliefs and the practices. हम इस चैप्टर को जनरली जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. लोग क्या सोचते थे इस टाइम पीरियड में, क्या थी उनकी मतलब उनके क्या बिलीव्स थे, फिर किस तरह से भक्ति आया, भक्ति के अंदर भी नॉर्थ इंडिया की भक्ति ट्रेडिशन कैसा था, साउथ इंडिया का भक्ति ट्रेडिशन कैसा था, सरगुण निर्गुण भक्ति क्या, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस होल थीम. क्लियर. सो द मोसेक ऑफ द रिलीजियस बिलीव्स एंड द प्रैक्टिसेस. सो यहाँ पे कितनी तरीके के मतलब किस तरीके से क्या हुआ करता था, कैसे बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस इस टाइम पे हुआ करते थे. क्लियर. इन दिस टाइम पीरियड सबसे पहले इस टाइम पीरियड में बहुत सारे गॉड एंड गॉडेसेस की जो हैं अलग अलग स्कल्पचर और टेक्स्ट आ गए थे. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज़ डिफरेंट वाइड ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस इन द स्कल्पचर एंड द टेक्स्ट केम एंड कंटिन्यूड एक्सटेंडेड वर्शिप ऑफ मेजर डेटीज. और सबसे ज़्यादा जो है मतलब मेजर डेटीज जो है कौन सी थी, विष्णु, शिवा एंड गॉडेसेस. विजुलाइज द डिफरेंट फॉर्म. और ये सिर्फ इनकी एक ही फॉर्म नहीं थी. लाइक फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंट अवतार्स ऑफ द विष्णु, डिफरेंट अवतार ऑफ द शैविज्म, डिफरेंट अवतार्स ऑफ द गॉडेसेस एंड लाइक दैट. तो दिस वॉज द टाइम पीरियड स्पेशली ऑफ द डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस स्कल्पचर. बहुत सारे अलग अलग स्कल्पचर्स पाए गए थे. उसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊँगी. जैसे उसका एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे अभी, लाइक दैट जगन्नाथ जी पूरी एंड कृष्ण जी के कितने सारे जो हैं, कृष्ण जी के अलग अलग तरीके से तरीका जो है मतलब उनकी भक्ति का. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स यहाँ पे अलग अलग रेंजेस के गॉड गॉडेसेस, अलग अलग व्हाट वी से दैट कि उनकी डेइटीज़ जो हैं आने लगी थी. स्पेशली इन सब में कन्फ्यूजन और इन सबको किससे कनेक्ट किया है, विष्णु, शिवा एंड द गॉडेसेस से इनको सबको कनेक्ट कर दिया. नाउ the time period came the integration of the cult. Now what is the basic meaning of the integration of the cult? Integration is like the coordination and the cult is just like the puja pranali. ठीक है, लाइक द वे टू डू द पूजा एंड द वे टू डू द भक्ति एंड ऑल दैट. तो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पूजा वगैरह करते थे. ठीक है. सो उनके अंदर आपस में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है. मतलब आपस में उनको कोऑर्डिनेशन, मतलब आपस में ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश किया, लाइक कनेक्टिविटी. फॉर एग्जांपल अब विष्णु जी के डिफरेंट डिफरेंट अवतार हैं, सब अलग अलग तरीके से पूजा वगैरह करते थे. तो किस तरीके से कनेक्टेड ऑल द अवतार एंड सेड लाइक दैट कि ये सब किसके अवतार हैं, विष्णु जी के. सो एंड द वे लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द पूजा. क्लियर. बट दे कनेक्टेड ऑल दे कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश की है, मतलब आपस में कनेक्ट रहने की कोशिश की है. तो व्हाट वर द थिंग, हाउ दे स्टार्ट कनेक्टेड विद ईच अदर, किस किस तरीके से रहे हैं, दैट वी आर गोइंग टू डू. ओके. नाउ इसके अंदर जो हमें स्पेशल ध्यान रखना है वो है हमारे ग्रेट एंड लिटिल. अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से. अब इसमें कोऑर्डिनेशन को समझने के लिए, इतनी सारी पूजा प्रणाली को समझने के लिए दो तरीके के इन्होंने जो है हिस्टोरियंस ने एक निकाला है कि इस टाइम पे दो तरीके का काम हुआ करता था. ठीक है. द टू टाइप्स ऑफ द वर्क्स एट प्रोग्रेस. टू टाइप्स ऑफ वर्क्स एट प्रोग्रेस. लाइक व्हाट. सो दो तरह के वर्क्स में कि एक पहला वर्क है कि ब्राह्मण्स ने अपने आप को या अपनी लाइक व्हाट वी से लाइक दैट के दे स्प्रेड देयर व्यूज़ ओनली. ओके. अपने आप को ब्राह्मण्स आइडियाज़ को फैलाने के लिए उन्हें कितना काम किया. सेकंड, दे एक्सेप्टेड द अदर्स ऑल्सो. सो हो गया ना इंटीग्रेशन, आपस में अपने व्यूज़ को भी फैलाने की कोशिश की, उसको फैलाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ईजी लैंग्वेजेस में सब कंपोजिशन लिखा, पुराण लिखे, लोगों को समझाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें. ठीक है. और दूसरों को भी दूसरे जो कैटेगरीज थी उनको भी एक्सेप्ट किया. तो ये सब चीज़ें जो हैं इस टाइम पे होने लगी थी, जिसको बाद में सोशियोलॉजिस्ट ने सबने ग्रेट और लिटिल के नाम से डिस्क्राइब किया. लेट अस सी व्हाट दे आर एक्चुअली. सो फर्स्ट थिंग जो आपको इसमें याद रखनी है, हिस्टोरियन ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलीजियस डेवलपमेंट. इस टाइम पीरियड में अलग अलग डेवलपमेंट होने लगा था. अब हिस्टोरियंस ने इस डेवलपमेंट को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया है समझने के लिए. सो बेसिकली उन्होंने कहा है दो तरीके की डेवलपमेंट जो है इस टाइम पे दो तरीके का काम हो रहा था. फर्स्ट इज दैट they start compiling composition and written the Puranic text in the simple Sanskrit words. Why? Because if you talk about the different Vedas and the Puranic tradition, they were using the very typical Sanskrit words that cannot understand by the common people and all that. So they start composed in the simple Sanskrit version, so everyone, the common people, can try to understand. Why?
only before to spread the Brahminical ideas. So everyone understand about the Puranic traditions and the Brahminical ideas and everything. For this, for their spread, for the spreading of their idea, for what the Brahmins did actually in the before. If we talk about the Vedic time period, at that time women and Shudras were excluded in learning the Vedas, but now Brahmins accepted that, and accepted their beliefs and practices that women and Shudras also can take Vedic, do the Vedic learning. अगेन आई एम टेलिंग यू, उन्होंने अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने की कोशिश की है, और स्प्रेड करने के लिए पहला व्यू है, स्प्रेड करने के लिए व्हाट दे डन, उन्होंने संस्कृत के अंदर जो है मतलब इजी संस्कृत के अंदर पुराण को लिखने की और कंपाइल करने की कोशिश की है। और दूसरा, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया कि वुमेन्स और शूद्रास भी जो है वैदिक लर्निंग कर सकते हैं, जो पहले वेदों के अंदर नहीं माना जाता था। क्लियर है, अंडरस्टूड। सेकेंड वन इज दैट ब्राह्मण्स एक्सेप्टेड एंड रीवर्किंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ वुमेन, शूद्रास एंड अदर सोशल कैटेगरीज। ब्राह्मण ने हर सोशल कैटेगरीज और अलग अलग तरीके के जो लाइक पूजा प्रणाली या हुआ करती है सबको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। डिफरेंट बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट किया, उनके ऊपर काम करना शुरू किया। दे एक्सेप्टेड, लाइक अभी जैसे बताया उन्होंने वुमेन और शूद्रास को वेदास के लिए एक्सेप्ट किया, ठीक है, वो उनके अपने आइडियाज़ को फैलाने के लिए। और दूसरा, उन्हें दूसरी सारी कैटेगरीज को एक्सेप्ट कर लिया, और उनकी कैटेगरीज को एक्सेप्ट करने का हेयर मीन्स इज दैट दे एक्सेप्टेड द वे ऑफ डूइंग देयर कल्स। क्लियर, दे एक्सेप्टेड, clear, and they rework on that. So this was the time period basically in the 8th to 18th century where the time changes, and the basic two things that historians notice is that the Brahmins spreading their ideas plus accepted the others' ideas also. Clear. So this was not the easy task to accept everything. This was actually they shaped all these change, matlab all these beliefs and practices, they changes because of continuous dialogues and all that. ये accept इतना आसानी से नहीं है कि ठीक है one came and other said that okay it's okay, then they accepted this. No, this is not the easy task to accept all these things. They accepted after long debates and long dialogues and continuous debates and dialogues. उसके बाद accept हुआ है कि okay कि हाँ कर मतलब कि अपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, इन द प्रीवियस themes also, like that Buddhism culture accepted. Clear, but it was not the easy task to accept the Buddhism and the Jainism culture by the Brahmanas, but they accepted after long debates and all that. धीरे धीरे वो accept होने लगा, just like that this also accepted. अब when they all accepted all these things, अब इन सबको इन्होंने जो है दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। लाइक इसमें हम जो है दो हिस्सों में किससे इन्होंने, मतलब सोशियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस ने, या सोशियोलॉजिस्ट बेसिकली बोल सकते हैं। अब इन्होंने जो है इन सबको, इन सारी कल्ट्स को या फिर इन सारी पूजा प्रणालियों को, इन सब जो भी यहाँ पे हो रहा था इस टाइम पे भक्ति एंड ऑल दैट, डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स, ग्रेट एंड द लिटिल। ग्रेट जैसे नाम से ही पता है, ग्रेट मतलब जिसको सब लोग मान रहे हैं, following by the Brahmins also, following by the others also, common peoples also. Clear, that are the way. For example, इसका एग्जाम्पल हो जैसे विष्णु, ग्रेट में आ गए। क्लियर, क्योंकि विष्णु जी एवरीवन फॉलोइंग दैट इज द ग्रेट संस्कृत पुरानी ट्रेडिशन, विष्णु जी, ठीक है। and the other one is the little tradition that is spreading in throughout the all land and जगह जगह फैल रहा था and all that, लेकिन दैट इज इन इफ़ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ के अंदर अलग अलग कल्स। फॉर एग्जांपल विष्णु का कोई अवतार, जैसे मैंने पूरी का एग्जांपल दिया, वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही फेमस है। क्लियर, और उनकी पूजा करने का तरीका अलग है, लाइक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा एंड ऑल दैट, उनका तरीका अलग है, अभी जैसे हुई थी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लिटिल में मानी जाती थी। तो एक सोशियोलॉजिस्ट थे 20th सेंचुरी के, उनका नाम था रॉबर्ट रेडफील्ड। उन्होंने जो है इस कल्चरल प्रैक्टिसेस को जो है पीजेंट सोसाइटी के हिसाब से ग्रेट और लिटिल में बांटा है। ग्रेट किसको बोला है, जहाँ पीजेंट जो है फॉलो करते हैं कौन से रिचुअल्स कस्टम, प्रीस्ट और रूलर्स जो फॉलो करते हैं वही रिचुअल्स एंड कस्टम्स उसको फॉलो करते हैं, वो ग्रेट। ये बहुत एग्जाम्पल्स में ले सकते हो ग्रेट को। यू कैन लर्न लाइक दिस ऑल्सो, लाइक दिवाली सेलिब्रेटिंग बाय एवरीवन, and the particular that you can say the great, everyone celebrating, whether they are the ruling class and the poor class, everyone, and like for example a particular pongal, yeah, these type of common festivals that are celebrating the particular areas, these were the cults, ठीक है, these were the small festivals, or you can say the way of doing it। तो ये जो है अलग तरीके से जो है मनाई जाती है, ठीक है। तो these were the there is a difference of the great tradition and the little tradition।
सो फॉलोड बाय पीजेंट्स फॉलोड विद द प्रीस्ट एंड रूलर्स, वो गए ग्रेट ट्रेडिशन। और पीजेंट जो नॉट फॉलोइंग बाय डोमिनेटिंग ग्रुप, जो अकेले ही वो फॉलो कर रहे हैं, अपनी लोकल प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द लिटल। क्लियर? सो दिस वॉज द थिंग द डिवाइड इनटू द डिफरेंट। तो इस टाइम पीरियड में अलग अलग पूजा प्रणालियाँ होया करती थी, अलग अलग लोग अपने आप कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। और उस ये इस टाइम पीरियड को सोशलिस्ट ने किस तरीके से देखा, इसको दो हिस्से में बांट दिया। एक वो चीज़ जो सब फॉलो करते हैं, नोन एज द ग्रेटर, एक वो चीज़ जो लोकल एरियाज में कुछ लोग फॉलो करते हैं, नोन एज द लिटिल। क्लियर ना? अब इसके दो एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया, डे टॉकिंग अबाउट द पुरी, एंड दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने लिया है मदर गॉडेसेस का। अब देखिए, द बेस्ट एग्जाम्पल डिवीजन ऑफ द प्रोसेस ग्रेटर इज दैट द पुरी। अब पुरी जो है, इन ये प्रिंसिपल डेटी कौन है इसके 12th सेंचुरी के अंदर? जगन्नाथ जी, द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, इज अ फॉर्म ऑफ द विष्णु। क्लियर? अभी उड़ीसा के अंदर ये पर्टिकुलर जो है, ये एक रथ यात्रा निकलती है, ये जगन्नाथ जी का, ये 12th सेंचुरी के अंदर जो है, ये इसको प्रिंसिपल डेटी यहाँ का मान लिए गए थे। ठीक है, तो ये लोकल हो गया वहाँ का। ठीक है, लेकिन ये किसका फॉर्म है? विष्णु के फॉर्म। तो नाउ दिस डेटी ऑफ विष्णु वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एंशिएंट टाइम पीरियड ऑफ द विष्णु। ये और है, ये जो डेटी है, हमने जो विष्णु के टाइम पीरियड की जो उस टाइम पे जो डेटी देखी है, और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, जबकि दोनों जो हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, दोनों ही डेटीज़ जो हैं वो वुड से ही बना करती थी, ये वाली भी और विष्णु जी की भी। क्लियर? लोकल ट्राइब्स ही बनाया करते थे। और उन्होंने बोला कि किसकी है, वो बोला करते थे कि दोनों ही किसकी बनाई जाया करती थी, विष्णु जी की बनाया जाया करती थी मूर्ति। सो विष्णु वॉज विजुअलाइज इन द डिफरेंट फॉर्म इन द अदर पार्ट ऑफ, और विष्णु जी अलग अलग पार्ट्स में भी विजुअलाइज हो रहे हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट, किसी भी तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हो, अगर पुरी की अगर हम बात करते हैं जगन्नाथ जी की, तो वो लोकल डेटी हो गई वहाँ की। क्लियर? और अगर हम उनको, वो किसका फॉर्म है? विष्णु जी का फॉर्म है, तो वो ग्रेटर के अंदर आ गए, एवरीवन इज फॉलोइंग दैट। सो दिस वाज द थिंग। क्लियर? एंड दोनों ही जो हैं, अब इसको कंपेयर कैसे किया कि दोनों ही विष्णु जी की हैं, क्योंकि दोनों ही मूर्तियां बुद्ध से बनी हुई वहाँ के लोकल ट्राइबल्स के द्वारा बनाई जाया करती थी, जिससे ये चीज़ रिकग्नाइज हुई है कि दोनों ही विष्णु की फॉर्म है। नाउ द अनदर एग्जाम्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ द मदर गॉडेसेस। अब मदर गॉडेसेस अगर आपने कभी देखा हो कि एक पत्थर के ऊपर रेड कलर का, जो रेड ऑरेंज जैसे जो कलर का जो वो लगा देते थे, स्मेयर्स कलर लगा दिया करते थे रेड कलर, और उसी को वो जो है पूजा जाया करता था पत्थर को ही। ठीक है, ये वाइड स्प्रेड हुआ था, अलग अलग तरीके से पूजा जाता है माताओं की, अलग अलग जगह जो है दे स्टार्ट डूइंग देयर लाइक रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, लेकिन माना जाता है पुरानी ट्रेडिशन के अंदर जो लोकल डाइटीज़ हैं गॉडेसेस की, ये किस मेन अवतार के, जो मतलब किस की वाइफ मानी जाती है। फॉर एग्जांपल वाइफ ऑफ द प्रिंसिपल मेन डाइटीज़, लाइक लक्ष्मी वाइफ ऑफ द विष्णु एंड पार्वती द वाइफ ऑफ द शिवा। क्लियर? तो इस तरीके से माना जाता था। सो जस्ट लाइक दैट, वाइफ ऑफ द प्रिंसिपल मेल डाइटी ग्रेटर हो गया, जिसको सब मानते हैं, एंड द लोकल लिटिल हो गया। क्लियर? जिसको लोकल एरिया में माना जाता है। क्लियर? तो दिस वर द थिंग्स दैट द टाइम पीरियड। सो दिस वॉज द टॉपिक दैट द टाइम पीरियड 8 to 18th century, द इंटीग्रेशन, मतलब लाइक द कोऑर्डिनेशन इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दैट कल्स स्टार्टेड. And what the notice by the historian, they notice it into the two types of the work in progress, and they divide into the two, great and the little. In whole, everyone is following the one and basic their deities. Clear? Okay. And the last topic of this is the difference and the conflict. So in this time period, there were so many differences and so many problems and conflicts also there. No conflict regarding what? Conflict regarding whose deity became the supreme. Like the Buddhism is supreme or the Jainism is supreme, or the Saivism is supreme or the Vaishnavism is supreme. That these types of the conflict started, and who done all these the conflicts. It is but obvious they all these conflicts doing by their devotees only, that whose deity was more supreme. Clear? And before these conflicts, there were so many differences also occur at this time period. If you talk about the differences in the time period, like अभी मैंने आपको बताया है मदर गॉडेसेस की पूजा किया करते थे, तो तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप भी इस टाइम पे स्टार्ट हो गई थी. क्लियर? तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप, जहाँ जैसे आपने नाम सुना है वही इसी की बात करें. तांत्रिक फॉर्म ऑफ वर्शिप ऑल्सो स्टार्ट, दे आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ द वर्शिप. क्लियर? डिफरेंट कैसे है, सब कंटिनेंट में स्टार्ट हो चुकी थी. मदर गॉडेसेस की, शक्ति की पूजा करते थे.
शक्ति क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द तांत्रिसिज्म दे बिलीव दैट द होल वर्ल्ड इज लाइक ओनली बिकॉज ऑफ द शक्ति फॉर्म ऑफ द गॉडेसेस। ये जितना भी अवतार ये सब जो बिकॉज ऑफ शक्ति की फॉर्म से चलते, तो वो किसकी पूजा करते थे? दे वर डूइंग द लाइक रिलीजियस बिलीफ विद द ऑफ द शक्ति ओनली, शक्ति की पूजा करते थे, ठीक है, तांत्रिक। अब बोथ एंड मैन एंड इसके अंदर जो है ये वेदास को जो है इग्नोर करते थे, कोई कास्टिज्म को नहीं मानते थे, कोई क्लास को नहीं मानते थे, किसी भी रिचुअल टेक्स्ट को नहीं मानते थे। मैन एंड वुमन फ्री टू टेक पार्ट एंड प्रैक्टिशंस, फ्री टू टेक पार्ट, सब में आराम से मतलब ऐसा कुछ भेदभाव किसी भी तरीके का नहीं था, क्लियर। और ये कौन से कल्ट के या कौन सी कल्ट इज जस्ट लाइक द कौन से उसके माने जाते थे, लाइक फॉर एग्जांपल कल्ट जैसे मैंने आपको अभी बताया पूजा प्रणालीज होते हैं, या फिर कल्ट लाइक कौन से वैष्णविज्म में हैं, शैविज्म में हैं, या फिर बुद्धिज़्म में हैं, जैनिज्म में, दीज वर ऑल्सो नोन एज द कल्ट्स, क्लियर। नो, तो कौन से शक्ति कल्ट के माने जाते हैं? वाई शक्ति? बिकॉज दे वर डूइंग द प्रैक्टिसेस ऑफ द मदर गॉडेसेस, ठीक है, जो किसकी पूजा करते थे? मदर गॉडेसेस की। सो फ्यू वर पीपल एंगेज इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस इग्नोर द, और एज यूजुअल वेदास को नहीं मानते थे। वेदास को नहीं मानते थे मतलब कि ब्राह्मणिकल आइडियाज़ को अपोज किया करते थे, क्लियर। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, पहला डिफरेंस कि दे वर नॉट फॉलोइंग द वेदास। सेकेंड डिफरेंस के अंदर हम बात करते हैं, इफ़ वी कंपेयर द इन द वेदास ओनली, लाइक बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं आपको बता दूं कि इन्हीं से इन्फ्लुएंस होके, किससे? तांत्रिक से, या फिर कास्टिज्म को नहीं मानना, बुद्धिज़्म में भी ये आइडिया, इनके कुछ आइडियाज से बुद्धिज़्म भी इन्फ्लुएंस हुए थे, और शैविज्म में भी। लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट, शैविज्म की अगर हम बात करते हैं तो शैविज्म की लाइक कल्ट्स के अंदर जो है लाइक ये तांत्रिक फॉर्म ऑफ यूज़ किया जाता है उसके अंदर। वाई? बिकॉज द मदर गॉडेसेस, ठीक है, का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। सेकंड, बुद्धिज़्म की बात करते हैं तो वो भी किसी भी कास्ट को, छोटा बड़ा ऊंचा किसी को नहीं, तो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस जो है शैविज्म और बुद्धिज़्म कल्ट वाले भी इनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे, क्लियर। सो द आने वाले जो 1000 साल या बोल दो आप, आने वाले सालों के अंदर इस तरीके की बिलीव्स और प्रैक्टिसेस करने वाले कौन? शैविज्म, बुद्धिज़्म, लाइक मदर गॉडेसेस की, वैष्णु जी की, इन सब को क्या बोलने लगे लोग? हिंदू। ये सब कौन है जो इन सबको मानते हैं? वो सब कौन है? हिंदू। तो हिंदूज के अंदर सब आ गए, क्लियर। शैविज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज्म, ये सब दे ऑल वर नोन एज द हिंदूज। सो इफ़ यू कंपेयर द वैदिक और पुराणिक, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, लास्ट टॉपिक है इसमें कंपैरिजन वाला। इसमें सबसे पहले जो डिफरेंसेस के अंदर क्या है कि अलग अलग फॉर्म्स आने लगे, तांत्रिक का आने लगा, ठीक है, और लोग उससे जो है मतलब इन्फ्लुएंस भी होने लगे। अब जो है कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन का टाइम आया है वैदिक और पुराणिक ट्रेडिशन के अंदर। तो वेदों का टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ द 1000 दैट द वैदिक एज, एट दैट टाइम पीरियड किसकी पूजा होती थी? अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमदेव, फिर इनकी पूजा हुआ करती थी, ये डेइटीज़ हुआ करते। लेकिन ये डेइटीज़ का, जैसे विष्णु जी, शिव जी और मदर गॉडेसेस का कोई स्ट्रक्चर है जिनको हम समझ के पढ़ सकते हैं उनके बारे में, लेकिन इनके बारे में कोई भी ऐसी फिगर, मतलब मार्जिनल फिगर ना के बराबर, ना उनके कोई टेक्स्ट है, ना उनका कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो धीरे धीरे बट ऑब्वियसली बात है क्या होने लगे? डिफरेंटली रिप्रेजेंटेड, क्लियर। नाउ सो बट इन वैदिक मंत्रास, लेकिन जो है वेदों के अंदर इनका है मेन डेइटीज़ हैं, ठीक है। पुराणों की मेन डेइटीज़ क्या आती हैं? पुराणों की आती हैं शैविज्म, वैष्णविज्म एंड गॉडेसेस। वेदों की कौन सी आ गई? अग्नि, इंद्र एंड द सोमा, क्लियर। नाउ तो ये तो फेंट होने लगे, लेकिन कुछ वैदिक मंत्रास जो थे, वैदिक मंत्रास वी कैन ग्लिम्स, उसमें जो हैं मंत्रों के अंदर कभी कभी विष्णु, शिव और गॉडेसेस के जो हैं बारे में जो उसमें आ जाया करता था, क्लियर, जो बहुत ना के बराबर, पुराणों में जितना ज़्यादा लिखा है उतना नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं, हम किसको ज़्यादा जानते हैं? व्हाट वी वर कंपेयरिंग मोस्टली विष्णु, शिव एंड गॉडेसेस, लेकिन उसके बावजूद भी ज़्यादा अथॉरिटी किसको दी गई? वेदों को। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है, क्लियर, कि वेदों के बारे में इतना जानते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके बारे में इतना पता भी नहीं है, फेंट भी होती जा रही चीज़ें, मार्जिनल फिगर है, ना के बराबर हैं, क्लियर। बस एक इतना सा है कि मतलब विष्णु, शिव और गॉडेसेस के बारे में कुछ थोड़ा बहुत कुछ मंत्रों में आया करता था, जो कि पुराणों में तो हर चीज़ उन्हीं के बारे में लिखी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कंपेयर करते हैं तो दोनों में से बड़ा किसको माना गया है? वेदों को माना गया है, ठीक है। पुराण जो है, वाई देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, ऑब्वियस द रीजन बिहाइंड दैट इज द हु केम फर्स्ट, द वेदास केम फर्स्ट, क्लियर। और उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। तो अथॉरिटी किसको दी गई?
वेदोस को दी गई, ठीक है, वेदास को। सो वैदिक ट्रेडिशन डिसअप्रूव्ड प्रैक्टिसेस। अब वैदिक ट्रेडिशन के अंदर जो है वो किसको नहीं मानते, वो बोलते हैं जिसके अंदर मंत्र और सेक्रीफाइस नहीं हो, ऐसी कोई पूजा ही नहीं होती। भगवान का नाम लेना है या डिवाइन ऑर्डर को हमें फॉलो करना है तो उसमें दो चीज़ तो करनी ही पड़ेगी, चैंटिंग द मंत्रस एंड डूइंग द सेक्रीफाइस। So disapprove the practices those not doing sacrifice and chanting mantra for regulate the contact with the divine। तो जो ये सब नहीं करते थे उसको वेद जो है डिसअप्रूव किया करते थे, क्लियर। एंड तांत्रिक किसको डिसअप्रूव करते थे, वेदों को डिसअप्रूव करते थे। और तांत्रिक जो है इस तरीके की पूजा करते नहीं थे, मंत्र पढ़ना और ये सब करना। तो ये हो गया इनके बीच में डिफरेंसेस, द डिफरेंसेस बिटवीन द तांत्रिक एंड द वेदास, क्लियर। एंड द अदर डिफरेंसेस वेदास एंड द पुराणास ऑल्सो। एंड ऑल्सो द डिवोटीज समटाइम एंड द अदर डिफरेंसेज ऑल्सो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिवोटीज भी आपस के अंदर कभी कभी अपनी डेटी जो होती थी, कोई विष्णु के फॉलोवर थे, कोई शिवा के फॉलोवर थे, तो अपने अपने फॉलोवर्स के हिसाब से अपने फॉलोवर उनको सुप्रीम माना करते थे। तो इसमें भी आपस में टेंशन हो जाया करती थी। हालांकि ऐसी टेंशन का कहीं रिकॉर्ड, प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, फुली नहीं बताया गया, बट स्टिल दे वर फॉलोइंग देयर रिलीजन एज सुप्रीम, क्लियर। समटाइम टेंशन बिटवीन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म अकर्स फॉर द सुप्रीम्स। स्टिल ओपन कन्फ्लिक्ट नॉट सीन, कहीं भी खुला कन्फ्लिक्ट नहीं दिखा है, बट इट इज ऑब्वियस देयर इज अ कन्फ्लिक्ट, ऑलवेज इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिलीजियस बिलीव्स एंड द प्रैक्टिस। नाउअडेज ऑल्सो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल दीज थिंग्स। सो इफ यू सी द भक्ति ट्रेडिशन, सो अब अगर हम कंपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ें थी इस टाइम पे 8 to 18, अगर अब हम कंपेयर करते हैं पुराना वेदोस का टाइम पीरियड का और अभी का जो टाइम पीरियड का, तो भक्ति तो स्टार्टिंग से ही हो रही है। वेदों के टाइम पीरियड पे 1000 साल पहले भी भक्ति हुआ करती थी, लेकिन नाउ द डिफरेंस ऑफ द भक्ति, स्पेशली भक्ति, इज दैट रूटीन वर्क तो रूटीन वर्शिप तो हो ही रही है पूजा मंदिरों में जाके, लेकिन उसके अलावा भी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एस्थेटिक एडोरेशन वेयर डिवोटीज अटेन ट्रांस लाइक स्टेट, एकदम मगन हो जाना। ट्रांस लाइक स्टेट होती है भक्ति में एकदम मगन हो जाना, लीन हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेस्टेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज दैट मीराबाई। ये टाइम पीरियड वो आ चुका था जहाँ पे ये लोग गाते थे, चैंटिंग ऑफ द डिवोशन, म्यूज़िक बजाया करते थे, म्यूज़िक को कंपोज किया करते थे, और दोनों तरीके की भक्ति हुआ करती थी, वैष्णविज्म में भी और शैविज्म में भी, क्लियर। इस तरीके की भक्ति स्टार्ट हो गई थी। नाउ दिस वाज द टाइम पीरियड 8 to 18, अगेन आई एम टेलिंग यू, व्हेन दिस टाइप ऑफ भक्ति स्टार्टेड, लाइक द रूटीन वर्क एज यूजुअल दैट वाज इन द प्रीवियस टाइम ऑल्सो, लाइक गोइंग टू द टेम्पल्स एंड डूइंग द वर्शिप ऑफ द डेटीज, बट नाउ द टाइम change, they are doing the worship in the temples also, but side by side the ascetic adoration where the devotees attain trance like the state also started, like that, भक्ति में एकदम लीन हो जाना, पागलपन की हद तक मतलब मस्त हो जाना, गाना बजाना and all that, these also started. So this type of bhakti started in the time period of the 8 to 18 century. I hope you understand all this, क्लियर। नाउ इन दिस ओनली आपको ये समझना है कि पुराना एंशिएंट टाइम पीरियड के अंदर और मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या रिलीजियस एंड बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस जो है चेंज हुए हैं, क्या नए ट्रेडिशंस आए हैं, ठीक है, और क्या क्या उसकी वजह से क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, क्या डिफरेंसेस आए हैं, किस तरीके से लोगों ने जो है उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश की है। ओके, सो दैट इज़ फॉर टुडे, थैंक यू।